إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی۔ بنجر زمین، ریتیلے میدان، تپتی ریت اور آگ برساتا آسمان، یہ ہے صحرائے تھر جو گزشتہ 2 سال سے بارش نہ ہونے کے باعث شدید خشک سالی کا شکار ہے۔ اس خشک سالی کے باعث رواں سال کی ابتدا میں نہ صرف فصلوں اور مویشیوں کو نقصان پہنچا، بلکہ 250 کے قریب بچے بھی مٹھی کے سرکاری اسپتال میں دم توڑ گئے۔ جب یہ رپورٹ میڈیا میں آئی تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے فوری نوٹس لیا، جس کے ساتھ ہی حکومت سندھ نے مارچ 2014 میں اس خطے کو قحط زدہ قرار دے دیا۔ تھر دراصل ضلع تھر پارکر کا حصہ ہے جو میر پور خاص ڈویژن کے 4 اضلاع میں سے ایک ہے۔ اس کے شمال میں ضلع میر پور خاص اور عمرکوٹ، مشرق میں بھارت کے اضلاع بارمیر اور جیسلمیر، مغرب میں بدین اور جنوب میں رن کچھ کا متنازع علاقہ واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 19,638 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر مٹھی ہے۔ اس ضلع میں 6 تحصیلیں، 63 یونین کونسلیں اور 2,823 گاؤں ہیں۔ 1998 میں ہونے والی آخری قومی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 9,55,812 ہے، جبکہ آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ اب یہ آبادی تقریباً 2 گنا ہو کر 18 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہاں کی آبادی 60% ہندوؤں اور 40% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کا 5% حصہ شہروں میں آباد ہے، جبکہ باقی آبادی صحرائی بود و باش رکھتی ہے۔ مارچ 2014 میں قحط زدہ قرار دیے جانے کے ساتھ ہی اس علاقے میں حکومت اور مقامی فلاحی اداروں کی جانب سے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ میڈیا کے ذریعے اس انسانی المیہ کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کروائی گئی، جس کے ساتھ ہی بیرون ملک سے بھی امداد کی ترسیل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کریں گے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ اس حدیث مبارک کو سامنے رکھتے اور تھر کے آفت زدہ ہم وطنوں کی اس مشکل کا ادراک کرتے ہوئے برطانیہ میں مقیم مسلمانوں خصوصاً پاکستانیوں نے ہنگامی بنیادوں پر ایک 2 رکنی ٹیم برمنگھم سینٹرل ماسک یعنی جامع مسجد برمنگھم کی جانب سے ریلیف فنڈ دے کر پاکستان روانہ کی۔ یہ ٹیم 18 اپریل 2014 کو باراستہ کراچی عمرکوٹ پہنچی اور قحط زدہ علاقوں کا سروے شروع کیا۔ میرا نام محمد محی الدین قمر ہے اور میرے ساتھ عبدالحمید چودھری صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم لوگ برمنگھم
سینٹرل ماسک کی طرف سے پاکستان آئے ہیں اور تھر کی صورتحال کے سلسلے میں جو فلاحی کام کے لیے ہمارے برمنگھم سینٹرل ماسک کے نمازیوں نے اور جو مخیر اثرات نے جو بھی ہمیں چیزیں دی ہیں اور پیسہ دیا ہے، ہم اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور تاکہ پتہ چل سکے کہ تھر کے جو حالات ہمیں وہاں پر بتائے گئے تھے اس کے مطابق، اور جو یہاں پر جو مسائل چل رہے ہیں ہیلتھ کے لحاظ سے، پانی کے لحاظ سے، اور دوسرے جو ابھی ہم جب یہاں سروے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں وقتاً پتہ چلا جائے گا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ برمنگھم سینٹرل ماسک کی ٹیم نے مرکوٹ پہنچ کر مقامی سوشل ورکرز اور عوام کی خدمات حاصل کر کے ایک منظم ٹیم تشکیل دی۔ اس ٹیم نے عمرکوٹ اور تھر پار کر کے ایسے گاؤں اور دیہاتوں کا سروے کیا جہاں اب تک کوئی امدادی ٹیم نہیں پہنچی تھی۔ ہم لونی ہار ویلیج میں پہنچے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک ختم ہو جاتی ہے اور یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوگا کہ ہم یہاں سے اور دور دور کے گاؤں کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے ان مسائل کا پتہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے پانی کی کیا حالات ہیں۔ ہم جا کے پوچھیں گے کہ کیا ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں یہاں کا سماجی کارکن ہوں اور میں یہاں کی ہماری ٹیم آئی ہوئی ہے برمنگھم سینٹرل ماسک کی، ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہوں۔ یہاں کی صورتحال قحط زدہ علاقوں کی اس سے متعلق میں اپنی سینٹرل ماسک کی ٹیم کو انفارم کر رہا ہوں۔ اس میں جو ہم نے ابھی تک کی ہوئی ہے سروے، اس میں جو مین پرابلم ان کا ہے ایک پانی یہاں کڑوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مین یہاں کا جو ایشو ہے وہ ہے ہیلتھ فیسلٹی۔ کہیں BHU بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں جہاں پر اگر ان کی بلڈنگ ہے تو وہاں پر ڈاکٹر کی کمی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے۔ تپتی ریت، آگ برساتا سورج، ناہموار کچے راستے اور سفر کی مشکلات بھی اس ٹیم کی راہ میں حائل نہ ہو سکیں۔ ٹیم میں شامل تمامی افراد نے دن رات محنت کر کے قحط زدہ علاقوں کا سروے کیا اور دور دراز صحرائی علاقوں میں جا کر لوگوں کے مسائل سنے۔ اس سروے کے دوران تھر کے عوام کے یہ مسائل ہماری ٹیم کے سامنے آئے۔ تھر کا سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ پانی ہے۔ کئی گاؤں ایسے ہیں جن میں کنویں نہیں ہیں۔ اکثر علاقوں میں زیر زمین موجود پانی نہایت کڑوا ہے۔ کسی جگہ اگر زیر زمین پانی میٹھا ہے بھی تو اس کا حصول نہایت دشوار ہے۔ کنووں کی گہرائی 250 سے 300 فٹ ہے، جن سے روایتی انداز میں ہاتھوں سے کھینچ کر پانی نکالا جاتا ہے۔ اتنے گہرے کنووں سے پانی نکالنے میں مقامی لوگوں کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کنووں سے پانی نکالنے کا دوسرا طریقہ جانوروں کا استعمال ہے، لیکن یہ طریقہ بھی نہایت سست اور باعث مشقت ہے۔ صرف ایک ڈول پانی کے حصول کے لیے 250-300 فٹ دور تک جانوروں کو ہانکنا پڑتا ہے۔ یہ عمل مقامی آبادی کے لیے نہایت دشوار اور تکلیف دہ ہے۔ پانی 200 فٹ کے نیچے ہے، وہ نکلنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور 1-2 کنویں کا میٹھا پانی ہے، باقی سارا کڑوا ہے۔ پانی مسلسل 80 سینکڑوں پانی جو ہے وہ کڑوا ہے اور 20 سینکڑوں پانی جو ہے وہ لوگوں کو ملتا ہے، صاف ستھرا ملتا ہے۔ تھر کا دوسرا بڑا مسئلہ تعلیم ہے۔ خصوصاً خواتین اور بچیوں کے لیے تعلیم کے مواقع تقریباً ناپید ہیں۔ اکثر گاؤں دیہات میں اسکول نہیں ہے۔ اگر کہیں اسکول کی عمارت موجود ہے بھی تو اس میں اساتذہ مقرر نہیں۔ اسی طرح خواتین کو معاشرے کا فعال فرد بنانے کے حوالے سے بھی ہر طرح کے وسائل مفقود ہیں۔ تعلیم کی یہاں صورت یہ ہے کہ صرف پرائمری تک محدود ہے۔ بچے پرائمری تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا جس طرح ہمارے بڑے کرتے آئیں اسی طرح وہ لگ جاتے ہیں کھیتی باڑی میں۔ اس کے بعد یہاں کے مڈل ہے، یہاں ہائی اسکول نہیں ہے، بہت دور جانا پڑتا ہے۔ یہاں مالی حالت کمزور ہے، اسی وجہ سے بچے نہیں جا سکتے ہیں، وہ بس یہیں تک رہ جاتے ہیں 5 جماعت تک۔ اور یہاں گرل اسکول بھی کوئی نہیں ہے، بچیاں جو ہے بس وہی قرآن شریف پڑھ لیتی ہیں گھر میں، باقی بچیوں کا کوئی بھی اسکول نہیں ہے۔ صرف وہ بچیاں بھی تھوڑا بہت پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد وہ بھی ہماری طرح کام میں لگ جاتی ہیں، کیونکہ مڈل اسکول بھی یہاں نہیں ہے، ہائی اسکول بھی نہیں ہے، بس 5 جماعت تک محدود ہے۔
बच्चे की पढ़ाई का थर का तीसरा बड़ा मसला सेहत है। पूरे सर्वे के दौरान टीम को किसी गांव में कोई डिस्पेंसरी या क्लिनिक नजर नहीं आया। अक्सर गांव सड़कों से दूर सहरा में आबाद हैं। बाज देहात तक पहुंचने के लिए रेतीले मैदानों और नाहमवार पगडंडियों पर 20-25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में किसी मरीज को करीब तरीन शहर के किसी अस्पताल में पहुंचाने के लिए 2 से 3 घंटे दरकार होते हैं। इस सूरत हाल में मकामी तौर पर डिस्पेंसरियों और इमरजेंसी अस्पतालों के क़याम और एम्बुलेंस सर्विस का इजरा निहायत जरूरी है। मसाले यह है तो एक तो हमारे हेल्थ का मसला है, अस्पताल नज़दीक कोई नहीं है, उमरकोट जाना पड़ता है और डिलीवरी का भी मसला होता है, उनमें डेट्स पे हो जाती है। इधर जो बड़े में बड़ा प्रॉब्लम हमारे से है वो है सेहत का, और सेहत जो है इधर ना होने की वजह से इधर बच्चे भी मरते हैं और औरतें भी मरती हैं। टीम ने एक हफ्ते में जिला थरपारकर और जिला उमरकोट के 47 से ज्यादा गांव और देहात का सर्वे किया। एक हफ्ते के सर्वे के बाद टीम ने निहायत एहतियात और जांफिशानी से एक रिपोर्ट मुरतब की और ये सिफारिशात मुशावरत के लिए पेश की। थर का बुनियादी मसला पानी है, इसलिए वहां ज्यादा से ज्यादा कुएं खुदवाए जाएं और हैंडपंप लगाए जाएं। नशेबी इलाकों और जमीनों में रिवायती वाटर स्टोरेज टैंक तामीर किए जाएं। जिन इलाकों में पानी कड़वा है वहां पानी को मीठा बनाने के प्लांट नस्ब किए जाएं। गहरे कुओं से पानी निकालने के लिए समर पंप नस्ब किए जाएं। जिन इलाकों में बिजली की सहूलत मैसर नहीं, उन इलाकों में समर पंप्स के साथ जनरेटर्स या सोलर एनर्जी सिस्टम नस्ब किए जाएं। जिन इलाकों में बच्चे और बच्चियों के लिए तालीम के मौके और वसाइल मैसर नहीं, वहां स्कूल कायम किए जाएं। जिन इलाकों में स्कूल की इमारतें मौजूद हैं वहां असातिज़ा मुकर्रर किए जाएं। जिन इलाकों में खवातीन के लिए ऐसे तालीमी मराकज़ मौजूद नहीं जहां उन्हें हुनर सिखाया जाता हो, ऐसे इलाके में इस किस्म के मराकज़ कायम किए जाएं। बेरोजगार अफराद और बेवाओं को बाइज्जत रोजगार फराहम किया जाए। जिन इलाकों में सेहत की सहूलियात मुयस्सर नहीं, वहां डिस्पेंसरियां कायम की जाएं। थर के पूरे खित्ते के लिए एम्बुलेंस सर्विस का इजरा किया जाए। मकामी रहनुमाओं, सोशल वर्कर्स और अवामी नुमाइंदों के मशवरे से टीम ने फौरी तौर पर इन मंसूबों पर अमल दरामद का फैसला किया। कुओं की खुदाई, हैंड पंप्स की तंसीब, वाटर स्टोरेज टैंक्स की तामीर, समर पंप्स की तंसीब, समर पंप्स के लिए जनरेटर्स की फराहमी, स्कूलों के लिए असातिज़ा की तकर्रुरी, खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई मराकज़ का क़याम, बेरोजगार अफराद और बेवाओं के लिए छोटे कारोबार और मवेशियों की फराहमी। तरजीही मंसूबों की तायीन के साथ ही टीम उनकी तकमील के लिए कोशां हो गई। कराची, उमरकोट, मिट्टी और दीगर शहरों से जरूरी सामान खरीदा गया और अल्लाह का नाम लेकर मकामी लोगों के ताबुन से काम शुरू कर दिया गया। एक हफ्ते की शबाना रोज मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की जानिब से शुरू किए गए ये मंसूबे पाया तकमील को पहुंचे। चार कुओं की खुदाई या तकमील का काम बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क के जिम्मे लेकर खुदाई का अमल शुरू किया गया। 10 हैंडपंप लगाए गए। एक हफ्ता हम पहले यहाँ पर आए थे और हमने सर्वे किया। यहाँ 5-10 घर हैं, उनको बड़ी पानी की शदीद किल्लत थी। हमने ये सिलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना हैंड पंप लग गया है
اور آئندہ انشاءاللہ جو یہ ہمارے مسجد والے ہیں اور بھی آئندہ محنت کریں گے. असां घणी तकलीफ़ कई बात सुख कोन्हे नुको जॻहियां रो नुको पाणी रो नुको अमदाद रो नुको टूटियां रो असीं ग़रीब माण्हू आहे पिने पिने वसी करे नलको ॾिनो अला हींअर गाज़ी हींअर भलो करे रसूल भलो कह रही है कि हम बड़े अरसे से जो है पानी की किल्लत की वजह से जो है मोहल्ले से बड़ी मुश्किलात लाने के लिए हमारी बेटियों और बच्चों को पड़ती थी, वो जो है हमारी मुश्किलात आपने दूर की है और ये दुआएं देती है कि हम सेंट्रल मॉस्क के जो है टीम इनको अल्लाह ताला और उनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनको हिदायत दें कि वो गरीबों के लिए काम करें, उनको खुश रखें. 25 वाटर स्टोरेज टैंक्स तामीर किए गए. इस वक्त हम खड़े हुए हैं लालाबाग गोट में और यहाँ का टेम्परेचर है तकरीबन 44 और यहाँ पर बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर कुछ वाटर स्टोरेज बनवाए हैं, जिसमें एक ये शामिल है, ये जिसकी अभी तकमील आज कंप्लीट हुआ है ये, मगर अभी इसमें हम इसको अंदर से देख नहीं सकते हैं क्योंकि इसको अंदर से सूखना है, तो इसके अंदर मिट्टी डाली हुई है उन्होंने. तकरीबन 2-3 दिन के बाद ये मिट्टी बाहर निकालेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. मैं आगे आपको शुरू कर दिखाता हूँ कि हमने ये जिस तरह से बनाया है, ये बना हुआ है और ये बना हुआ है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये सिमिलर है बिल्कुल. आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये पानी अपना जो बारिश होती है यहाँ पर वो लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर डालते हैं ताकि ये तकरीबन 5 से 6 महीने 7 महीने जब भी बारिश आनी होती है तो ये इस्तेमाल करते रहते हैं. इसमें हमने इसी तरीके से एक और वहाँ पर बनाया है और हमने इसी तरीके से अगले 2 गांव और हैं यहाँ पर, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 के करीब वहाँ बन रहे हैं अभी, और इंशाल्लाह ताला ताकि इन लोगों के लिए यहाँ पर इस वक्त यही चीज़ की ज़रूरत थी. हम मोयुद्दीन भाई और अब्दुल हमीद का शुक्रिया अदा करता है जो इसने ये काम हमें दिया. हम इधर गरीब जो लोग हैं उनको दे रहे हैं, उसकी मेहरबानी. हम 8 समर पंप नस्ब किए गए. 7 समर पंप्स के लिए जनरेटर्स फराम किए गए. बर्मिंघम मॉस्क वालों ने ये समरसेबल जनरेटर पानी निकालने वाली मशीन दी है, इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं. उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं. बर्मिंघम सेंट्रल वालों ने हमारे कुएं पर जो हमको ये दिया है जनरेटर सिस्टम, जिससे हमारी पानी के निकालने की जो तकलीफ़ थी वो हमारी दूर हो गई. हम इन सब दोस्तों के शुक्रगुजार हैं. अल्लाह ताला उनको इस कार्य खैर का जज़ाए खैर अता फरमाए. एक बॉयज़ स्कूल के लिए उस्ताद का तकर्रुर किया गया. इसी तरह एक गर्ल्स स्कूल के लिए उस्तानी का तकर्रुर किया गया. स्कूल है मौजूद यहाँ पर, मगर यहाँ पर इस लड़कियों की तालीम के सिलसिले में कोई टीचर मुख्तस नहीं की गई थी. उस सिलसिले में बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क ने अल्हम्दुलिल्लाह एक टीचर यहाँ पर रखी है और इसका 1 साल के लिए वजीफ़ा भी मुख्तस किया गया है. और बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क चाहती है कि यहाँ पर बच्चियों को लड़कियों को तालीम दी जा सके. और यहाँ पर मेरे साथ एक मौजूद हैं, ये जो यहाँ की टीचर हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं और मैं इंशाल्लाह ताला उनसे गुफ्तगू करता हूँ कि वो यहाँ पर बच्चियों को क्या तालीम देना चाहती हैं. मेरा नाम समीना समेजो है. मेरी तालीम BA पास है और PTC भी की है. मैं 12 महीने तक बच्चों को मैं तालीम देंगे और बर्मिंघम इदारे की तरफ मैं काम करेगा. ख़वातीन के लिए 2 सिलाई कढ़ाई मराकज़ कायम किए गए. इस वक्त हम मौजूद हैं जंजी गोट में और यहाँ पर हमारी टीम आई है और 1 हफ़्ता पहले भी हम लोग यहाँ पर आए थे, जब हमने देखा कि यहाँ पर औरतों के लिए और बच्चियों के लिए यहाँ पर कोई सरगर्मी मौजूद नहीं थी तालीम के सिलसिले में. और इस तालीम के सिलसिले में हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की तरफ से यहाँ पर एक सिलाई मशीन का सिलाई कढ़ाई सिखाने का एक मरकज़ कायम किया है और इसके सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ पर एक बना भी दिया है मरकज़. ये वो असल इमारत है जो बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क ने औरतों के लिए और लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई मशीन के बनाने का सेंटर खोलने के लिए ये बनाई है और जो अभी ज़ेर तामीर है. इंशाअल्लाह ताला इन चंद दिनों में ये पाए तकमील तक पहुँच जाएगी. हम UK मस्जिद वालों का शुक्राना अदा करते हैं जिसने ये सेंटर किया है. बेरोजगार अफराद और बेवाओं को 2 दुकानें कायम करके दी गईं और कारोबार के लिए मवेशी फराम किए गए. बेरोजगार अफराद को कालीन साजी की 5 खड्डियां लगाकर दी गईं और उनके लिए खाम माल भी मुहैया किया गया. इसके अलावा टीम ने 14 बकरे ज़ुबह करके उनका गोश्त भी गरीबों में तकसीम किया. गांव का नाम है वर्नारियो. इस गांव की कुल आबादी 800 के करीब है. इस गांव में बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क के आयल दोस्तों ने हमारे पास पानी का मसला था, उसके लिए समर पंप लगवाए.
आए कुछ गरीब लोगों में बकरियां दी और मशीन सिलाई मशीनें दी आए और तालीम के हवाले से फर्नीचर और किताबें दी। हम बहुत इस दोस्तों से बहुत शुक्रगुजार हैं। इस्लाम अमन आश्ती और उखुवत भाईचारे का मजहब है। ये अपने मानने वालों को तमाम इंसानों के साथ नेकी और भलाई का हुक्म देता है। हिंदू मत के पैरोकार थर की कुल आबादी का 60% हैं। जिस तरह वहाँ की मुसलमान आबादी इन मसाइल का शिकार है, इसी तरह हिंदू आबादी भी कहत की संगीन सूरत हाल से गुजर रही है। इसलिए बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की टीम ने पहले दिन ही ये अज़्म कर लिया था कि थर के मुसीबत ज़दा अवाम की खिदमत इस्लामी तालीमात की रोशनी में बिला तफरीक रंग व नस्ल और मजहब की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की टीम ने थर के कहज़दा इलाकों में मुसावी तौर पर इमदादी काम किया। जिस तरह मुस्लिम अक्सरियती इलाकों और देहात में मंसूबे शुरू किए, इसी तरह हिंदू अक्सरियती इलाकों में भी मंसूबों का इजरा किया और समाजी काम करने वाली दीगर जमातों और अफराद के लिए एक मिसाल कायम की। भाई आपका नाम क्या है? सज्जन। तो मुझे ये बताओ भाई सज्जन कि यहाँ पर कौन लोग रहते हैं ज़्यादातर? यहाँ पर मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कौन लोग हैं यहाँ पर ज़्यादातर? हिंदू है। सारे लोग हिंदू हैं। सारे लोग हिंदू हैं। चाचा जी आपका क्या नाम है? स्वरूपो। हाँ। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो? भाई साल घना है 80 साल से रह रहे हो। आप खुश हो कि ये कुआं आपको मिल रहा है? तो आप कुछ कहना चाहोगे कि ये आपको जो कुआं मिल रहा है उसके बारे में? जी असां पानी का खुश आहियूं। असां मदद करो खुश आहियूं। खुश करो हिम्मत करो माने तड़ जो असांजो बाल थिए ऐं ख़ुदा आंखे ईमान ॾे ऐं जो जेको धर्म ऐं जो इंसाफ़ वो ख़ुदा आंखे ॾे। असीं मिस्किन गरीब आहियूं। असांजो जेका तड़ आहे जेका असांजी मदद करो। असीं मिस्किन आहियूं। अॻे गच वक़्तु गुज़रियो असां पाणी जी तकलीफ़ तंहिंजे महिरबानी असांजी मदद करो ये बाल थिए। बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क के इस कारनामे ने एक बार फिर कुरून औला की याद ताज़ा कर दी, जब तमाम भलाई के काम मस्जिद से हुआ करते थे और हर खैर का चश्मा मस्जिद से ही फूटता था। ये जो हमारे मेहमान आए हुए हैं बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क से, मोहिद्दीन साहब और हमीद साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने थर के इस क्राइसिस के वक्त में थर पार्कर का दौरा किया है और वहाँ पे फलायत के काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे काफ़ी ब्रीफ़ किया कि ये कौन कौन से काम कर रहे हैं और ऐसे ही कामों की यहाँ पे इस वक्त थर पार्कर में ज़रूरत है। कुओं की, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ में, ये तकरीबन सारे फील्ड्स में काम कर रहे हैं और दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग। और मैं बड़ा इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये इस इलाके में आएँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी ये इस तरह के काम करेंगे। चंद दिन पहले ये लोग आए थे, अब्दुल हमीद और मुहिद्दीन भाई। मैं इनके साथ सर्वे किया और इन्होंने जो है ना अपने जो मंसूबे दिए थे उनमें पानी, सेहत और तालीम थी, जो हम इनके साथ मिलकर जो हैं वो सारे जो है ना पाए तकमील तक पहुँचाए हैं। हम इनके जो है ना शुक्रगुज़ार हैं। अभी मेरे साथ मोहिद्दीन साहब और अब्दुल हमीद साहब जो बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क से तशरीफ़ लाए हैं, उससे मैं तकरीबन 18 तारीख से इनके साथ हूँ मैं। और जो काफ़ी गांव हमने विज़िट किए जहां पर काफ़ी सारे मसाइल थे, जिसमें पानी और हेल्थ अहम मसाइल में शामिल थे। और दूसरे काफ़ी स्कूल्स थे जहां पर बच्चे तो काफ़ी थे मगर बैठने के लिए चेयर्स, टेबल्स वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं थी और ना ही उनके पास कोई किताब वगैरह मौजूद थे। और जिसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर अब्दुल हमीद साहब ने और मोहिद्दीन साहब ने जो खिदमतें सर अंजाम दी हैं, इंशाल्लाह इसको थर पार करके लोग, यहाँ के नंगर पार करके लोग इस चीज़ को, खिदमत को कभी भूल नहीं सकते। जिसने काफ़ी गाँव में समर पंप और स्कूल्स में किताबें वगैरह और जो उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए उन्होंने बकरियां वगैरह, कुछ शीप्स, गोट्स और वोकेशनल सेंटर में मशीन्स वगैरह उन्होंने डोनेट किए हैं, जिससे यहाँ के लोगों में कुछ खुशी की लहर फैल गई है। मैं बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क के मुखय्यर हजरात से अपील करता हूँ कि थर पार्कर में
ابھی بہت کام باقی ہے اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اور دوسرے گاؤں میں پانی کی بہت ضروریات ہیں، تعلیم کی بہت ضروریات ہے، تعلیم کی بہت ضرورت ہے، جس کے لیے اسکول، کتابیں، فرنیچر کی بہت ضرورت ہے۔ ایون کہ یہاں پر اسکولوں میں بچے تو ہیں مگر اساتذہ نہیں ہیں، ٹیچر نہیں ہیں، تو میں مخیر حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دل کھول کر سینٹرل ماسک کو تھر کے فنڈز میں عطیات دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایمانداری کے ساتھ ان تک پہنچائیں۔ برمنگھم سینٹرل ماسک نے قحط زدہ تھر میں امدادی کاموں کی ابتدا کر دی ہے۔ یہ سفر نہایت طویل اور وسائل طلب ہے، اس لیے برمنگھم سینٹرل ماسک برطانیہ میں مقیم مسلمانوں خصوصاً پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ تھر کے آفت زدہ انسانوں کی اس خدمت میں اس ٹیم کا ساتھ دیں، آگے بڑھیں اور مسائل سے دوچار انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔